السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالی اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر۔ پی یو سی کمیٹی چیئرمین آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی کا دورہ، آرمور عوامی مسائل کی سماعت و مختلف ترقیاتی کاموں کا کیا آغاز۔ ہجومی تشدد کا شکار رجب علی و ان کے افراد خاندان کو حکومت بے باک جانچ کرواتے ہوئے انصاف دے، صدر جمعیت علماء ہند حافظ لئی خان۔ بانسواڑہ علاقے کے نوجوان کھیل کود کے میدان میں آگے آئے، ڈی سی سی بی چیئرمین پوچرام بھاسکر ریڈی۔ متحدہ ضلع ایم ایل سی کے کویتا کا دورہ نظام آباد، کل رورل رکن اسمبلی باجوے ڈی گوردھن کے ایم ایل اے کیمپ آفس کا کریں گے افتتاح۔ مدن حلقے کی ترقی کے لیے عوامی نمائندہ و قائدین کی ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی و ایم پی بی بی پاٹل و ایم ایل اے ہنومان شنڈے سے ملاقات۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ضلع صدر جمعیت علماء حافظ لئی خان کی صدارت میں جمعیت علماء ہند کے وفد کی بانسواڑہ ہجومی تشدد کا شکار ہونے والے مرحوم رجب علی کے افراد خاندان سے کی ملاقات۔ وہ تمام واقعے کی مجسٹریٹ جانچ کا کیا مطالبہ کرتے ہوئے مرحوم کے ورثے کو حکومت کی جانب سے فوراً امداد فراہم کرتے ہوئے اس غریب کو انصاف دلانے کی ریاستی وزیر اعلیٰ KCR سے کیا مطالبہ۔ علی جناب حافظ عبدالکریم صاحب اور مفتی عمر صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف لائے، اور ان کے اہلیہ مرحوم کے اور ان کے بچوں کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا اور ان سے گفتگو کرنے کے بعد کہ رجب کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ کوئی حادثہ نہیں، بلکہ وہ ایک منصوبہ بند پلاننگ کے ساتھ ایک قتل ہوا، وہ مقتول ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور ان کے اور ایک جو ساتھی تھے عبدالعزیز جو نظام آباد دواخانے میں زیر علاج تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پہلے کہا کہ 12-15 گاڑیاں ان کے پیچھے لگے اور پیچھے سے لکڑی سے مارنے کے بعد وہ گرے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کاماریڈی کے ایس پی صاحبہ کہ اس کے اوپر آزادانہ انکوائری کرائی جائے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کیا دوسروں کی جان ہے اور مسلمان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ان کا قتل ہوا بے رحمی سے، بے دردی کے ساتھ۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی مجسٹریٹ انکوائری کرائی جائے، اور ان کو یہ جو موب لنچنگ ہوئی ہے، لنچنگ کا مقدمہ خاتیوں کے اوپر درج ہونا چاہیے، اور ان کو حکومت کی جانب سے مکمل مراعات ملنی چاہیے۔ اور یہ غریب کرائے کے گھر میں ہیں، 5 بچے ہیں، اور وہ مزدور ٹائپ کے آدمی تھے۔ اس لیے میں حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو ایکس گریشیا دیا جائے، کرائے کے مکان میں ہیں، اور ان کو ڈبل بیڈ روم مکانات بھی ان کو فراہم کرنے کا میں مطالبہ کرتا ہوں۔ شوہر کو بلا کے مارے، ہمارا کوئی نہیں ہے، اونچ کرتے تھے تو ہم کھاتے تھے۔ ہم گھر بھی نہیں ہے، ہم یہ گھر میں کرائے سے، ہم گاؤں میں کھیت نہیں ہے، گاؤں میں گھر نہیں ہے، جنگل میں کھیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے کو۔ ہمارے آدمی لانا تو ہم کھاتے تھے، اتنے 5 بچوں کا ہمارا کیسا کرتے آپ؟ ہمارے شوہر کے ساتھ انصاف ہونا کوسا بھی۔ ہمارے شوہر کے مرنے کے بعد ہمارا گھر چلنا مشکل ہوگا، ہمیں گھر بھی نہیں ہے، ہمیں ڈبل بیڈ روم تو بھی ہونا، ہمیں کیسا بھی ہمارا انصاف کرو۔
बच्चों को सहारा हमारा सहारा कोई नहीं है। अब हमारे करने वाले चले गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम कैसा पढ़ना क्या नहीं। किसी जमात वाले आए आके कुछ हमारी मदद करें, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मजदूर मंडल से वाबस्ता कायदीन तरक्याती कामों के लिए MP बीबी पाटिल, MLA हनुमान शिंदे और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी से की नुमाइंदगी। मजदूर मंडल से वाबस्ता कायदीन ने रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी व पार्लियामेंट मेंबरान बीबी पाटिल और रुकन असम्बली हनुमान शिंदे से मुलाकात करते हुए मंडल से मुंसलिक मरकजी तालीमी इदारों के तरक्याती काम जैसे सेंट्रल लाइटिंग, बाईपास, CC रोड पर मबनी याददाश्त हवाले की इस प्रोग्राम में मदनूर सरपंच D सुरेश, मजदूर मंडल TRS सदर संगमेश्वर, DCCB डायरेक्टर राम पटेल, मार्केट कमेटी चेयरमैन साया गौर व दीगर ने शिरकत की। आर्मूर शहर के जीवन रेड्डी मॉल में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए KFC का PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के KFC पर आमद के मौके पर KFC मालिकीन ने पुरजोर इस्तकबाल किया। बातज़ा PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने KFC का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि इलाके के अवाम को सहूलत पहुँचाने के मकसद के तहत आर्मूर में शॉपिंग मॉल रिलायंस डिजिटल का क़याम अमल में लाया गया है। तमाम अवाम KFC की जानिब से फराहम करदा सहूलियात से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में काउंसलर, कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। వారి యొక్క వ్యాపారం చాలా మంచి కొనసాగాలని ఇక్కడ ఆర్మూర్ ప్రాంతం, ఎందుకంటే KFC అంటే కేవలం గతంలో హైదరాబాద్లో ఉండేది, జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా లేని పరిస్థితి. కానీ అట్లాంటిది ఇలా ఆర్మూర్ ప్రాంత పట్టణానికి రావడం, మున్సిపాలిటీలో ఉండడం ఆర్మూర్ ప్రజల యొక్క అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. చాలా యూత్ బాగా క్రేజీగా ఉన్నారు KFC గురించి, పిల్లలంతా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. మరి వారి యొక్క KFC బాగా బ్రహ్మాండంగా నడవాలని చెప్పి వారికి ఆల్ ది బెస్ట్ తెలియజేస్తూ ఇలా నా చేతుల మీదుగా ఇనాగ్రేషన్ జరగడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. अवामी मसाइल के हल के लिए क़याम करदा डिचपली हल्का असम्बली MLA कैंप ऑफिस के तामीराती काम मुकम्मल। मुत्तहदा जिले MLC के कविता व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों अनकरीब इफ्तिताह। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता कल रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन के कैंप ऑफिस को इफ्तिताह अमल में लाएंगे। लिहाजा तमाम हल्के से वाबस्ता MPP, ZPTC, वाइस MPP, सरपंच, MPTC, सोसाइटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर, नायब सरपंच, पार्टी मौजूद सदर, रायतु बंधु समिति मंडल सदर, मौजूद सदर और देहात के कोऑर्डिनेटर मेंबरान, साबिका सरपंच, साबिका MPTC, TRS कायदीन, नौजवान कायदीन, सोशल मीडिया अवामी नुमाइंदे, मंडल कायदीन, सीनियर कायदीन, हल्के से वाबस्ता अवामी नुमाइंदे व कायदीन व कारकुनान, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व अवाम को शिरकत करने की ख्वाहिश की। शहर निजामाबाद में खवातीन व लड़कियों के लिए किफायती कीमतों पर उम्दा व मियारी मलबूसात की फराहमी के लिए मौलाना खदीर उस्सामी की जानिब से शहर के इलाके किला रोड पर AGS लेडीज क्लास शॉप का क़याम। शहर के मौजूदीन की मौजूदगी में तिलावत कुरान व दुआओं के साथ शानदार इफ्तिताह। शहर निजामाबाद में लड़कियों व खवातीन के लिए मियारी व उम्दा मलबूसात की फराहमी के लिए शहर निजामाबाद के किला रोड पर रूबरू AGS मेडिकल, अहमदी बाजार पर AGS लेडीज क्लॉथ शॉप का शानदार इफ्तिताह शहर के मौजूदीन व उलमाए-दीन के हाथों तिलावत कुरान पाक व दुआओं के साथ अमल में लाया गया। इस मौके पर मालिक दुकान मौलाना खदीर उस्सामी साहब ने कहा कि इस दुकान में हम अक़साम के मलबूसात मौजूद हैं, जिनमें कुर्तीज, टॉप, प्लाजो व दीगर शामिल है। इस तकरीब में सुल्तान बा महदी व शहर के कई उलमाए-दीन व कायदीन ने शिरकत करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ए अल्लाह, तिजारत तेरे नबी की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, आपने एक बहुत बड़ा बरकत का हिस्सा तिजारत के अंदर रखा है। ए अल्लाह, ने असबाब के तौर पर अल्लाह यहाँ पर तिजारत करने का इरादा किया है। अल्लाह, इस जगह में बरकत नसीब फरमा, यहाँ के माल में बरकत नसीब फरमा, यहाँ के अफराद में बरकत नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें अल्लाह तिजारत का गुरु सिखा दे। अल्लाह, हमें तिजारत का तरीक़ा सिखा दे। अल्लाह, प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया को तिजारत की लाइन से अल्लाह जो बातें बताई हैं, अल्लाह हम तो इस लाइन के भी अल्लाह बिल्कुल नौवारिद हैं। अल्लाह, हमें कुछ नहीं आता, हमें ना इसके उसूल मालूम है, ना इसके ज़ाब्ते मालूम है, ना इसका तौर तरीक़ा मालूम है। हम तो शुरू से ही बेढंगे हैं। अल्लाह, बेढंगों को अपना कुछ तौफीक दी है।
दिल में बात आपने डाली है, तिजारत का या अल्लाह दिल में बात आपने डाली है, आपके भरोसे पे अल्लाह ये कारोबार शुरू किया जा रहा है। अल्लाह यहाँ इस वक्त मेरे सामने हमारे शहर का एक करीम तबका बैठा हुआ है। अल्लाह सब मकबूल दुआ हैं, सब बाअखलाक लोग हैं, बाकिरदार लोग हैं। अल्लाह हमारी नेक नीयत यही थी कि हम इनको बुलाएँ और इनके कदम हमारी दुकान में पड़ें और इनके कदमों की बरकतें अल्लाह इनके अल्लाह हमारी दुकान के वास्ते से अल्लाह असबाब में मुंतकिल होती हुई घरों में पहुँचे। अल्लाह हमें तिजारत का ढंग सलीक़ा 14 मिनट 47 सेकंड तक सूर्य नमस्कार करने पर बीजेपी जिले सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया का नाम लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल। शहर के बसवा गार्डन में तेलंगाना योगासन एसोसिएशन की ज़ेरे निगरानी में बीजेपी जिले सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने 108 सूर्य नमस्कार को सिर्फ 14 मिनट 47 सेकंड में करने की बिना पर लिंका बुक ऑफ रिसीट्स को मुंतखब हो गए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने शिरकत करते हुए जिले सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया को मुबारकबाद पेश की। बातज़ा जिले सदर ने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए योगा निहायत जरूरी होने का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव व कोरोना से मुतासर अशखास कोरोना वायरस से सेहतियाब होने के लिए योगा का करना निहायत जरूरी होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना योगासन एसोसिएशन नायब सदर कृपानंद, ताइक्वांडो कोच मनोज व दीगर ने शिरकत की। మాకే సాధ్యపడేది అంటే మేమే చేయలేము అంటే మాకు ఉన్నటువంటి ఏజ్లో ఏమైనా 108 అనేది మాకు రాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అట్లాంటిది వారు అంత ఏజ్లో చేశారనేది చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. ఎట్లా సాధ్యమైంది అని అంటే అది నిరంతర సాధనతోటి అని అట్లాగే చాలా కృషితోటి మేము చేసాం సార్. ఒక రికార్డ్ టైం అంటే ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లోనే ఇది నేర్చుకొని మేము చేయడం అనేది జరిగింది అని అనడంతో చాలా సంతోషం వేసింది. సో ఈరోజు నిజామాబాద్లో తెలంగాణ యోగాసన స్పోర్ట్స్ అథారిటీ వారి ఆధ్వర్యంలో 108 సూర్య నమస్కారాలు అతివేగంగా చేయడం జరిగింది. 14 నిమిషాల 45 సెకండ్లో పూర్తి చేసి ఈరోజు 108 సూర్య నమస్కారాలు కంప్లీట్ చేసేసి ఈరోజు యోగా గురువుల మధ్యలో చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా దీనికి స్ఫూర్తి కరోనా సమయంలో మనం ఏదైతే యోగాభ్యాసం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి గురువులు చెప్పడము। आइटा निजामाबाद की जानिब से असातिज़ा व तुलबा की तहनीती तकरीब का इनेकाद, तुलबा लॉकडाउन के औकात का बेहतरीन इस्तेमाल करने की अपील। आइटा जिले निजामाबाद की जानिब से जनाब मोहम्मद यकीनुद्दीन रियासती सदर तेलंगाना आइटा की ज़ेरे सदारत खवातीन हॉल निजामाबाद पर शानदार पैमाने पर तहनीत तकरीब प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में पॉलीसेट 2021 में रियासती सतह पर पहला रैंक हासिल करने वाले तालिब इल्म अब्दुल रहमान मुश्तबा हाशमी को इनकी अजीम शान कामयाबी पर जनाब मोहम्मद यकीनुद्दीन के हाथों तहनीत पेश की गई। साथ ही साथ उर्दू अकेडमी तेलंगाना की जानिब से बेस्ट टीचर अवार्ड हासिल करने वाले असातिज़ा जिनमें जनाब मोहम्मद अब्दुल नईम साहब, जनाब इलियास अहमद साहब, जनाब मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब और जनाब मोहम्मद सलीम साहब को भी इनकी अजीम शान कारकर्दगी पर तहनीत पेश की गई। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से शुरू हुआ। जनाब मुजाहिद साहब जनरल सेक्रेटरी ने इफ्तिताही कलिमात पेश की। इस मौके पर पॉलीसेट में पहला रैंक हासिल करने वाले तालिब इल्म अब्दुल रहमान मुश्तबा हाशमी और उर्दू अकेडमी से अवार्ड याफ्ता असातिज़ा ने अपने ख्यालात का इजहार किया और आइटा के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया। सदर आइटा जिले निजामाबाद जनाब अब्दुल सलाम साहब ने तमाम अवार्ड याफ्ता असातिज़ा और पॉलीसेट स्टेट फर्स्ट रैंकर अब्दुल रहमान मुश्तबा हाशमी को मुबारकबाद पेश की और इनके हक में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस तहनीती तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब अलीम साहब और जनाब फजलुल्लाह साहब ने शिरकत की और अवार्ड याफ्ता असातिज़ा की तहनीत पेश की और तमाम के हक में नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मुबारकबाद पेश की। अपने सदर के खिताब में जनाब मोहम्मद यकीनुद्दीन साहब सदर तेलंगाना आइटा ने तमाम असातिज़ा को खिताब करते हुए आइटा के अगराज व मकासिद बयान के तमाम अवार्ड याफ्ता असातिज़ा को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश की और पॉलीसेट में स्टेट फर्स्ट रैंक हासिल
हासिल करने वाले अब्दुल रहमान मुश्तबा हाशमी को मुबारकबाद दी और इनके वालिदैन के हक में दुआ की। अपने खिताब में इन्होंने कहा कि आज हमारे मुआशरे में ऐसे ही कई अब्दुल रहमान मौजूद हैं जिन्हें बेहतर तालीम व तरबियत और मौसर रहनुमाई की जरूरत है ताकि वो अपना हकीकी मुकाम हासिल कर सके। इन्होंने इस्तातिज़ा को ऐसे तालिब इल्म को आगे बढ़ाने में ताउन करने की अपील की। इस मौके पर जनाब इलियास अहमद साहब शुक्रिया अदा किया। जनाब अजीम साहब, जनाब खालिद साहब ने शुरका का इस्तकबाल किया। निजामत की फराइज मोहम्मद मोइजुद्दीन मीडिया सेक्रेटरी ने अंजाम दिए। होता है एक टीचर कैरियर काउंसलर होता है, एक टीचर कौम के बच्चों को, कौम के नौजवानों को जानता है, पहचानता है और उनके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को परवान चढ़ाने का काम मुसलसल करता रहता है। इसीलिए टीचर अजीम। टीचर का प्रोफेशन सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि टीचर की पूरी लाइफ एक मिशन है जिसके ऊपर वो लगा हुआ है और बगैर थके हुए कि मुसलसल ये काम अंजाम दे रहा है। अक्सर ये समझा जाता है, कहा जाता है कि टीचर्स बहुत आसान, टीचिंग का जो पेशा है बहुत आसान पेशा है, लेकिन ये बात गलत है। सही बात तो ये है कि टीचर्स मेहमारान कौम है। ये वो लोग हैं जो इस कम्युनिटी के बच्चों में से उन मोतियों को, उन हीरों को ढूंढ के निकालते हैं और उनको उनके असली मुकाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, उसके लिए मैं तमाम टीचर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पर बेस्ट टीचर अवार्डीज़ जिसको सेलेक्ट किया गया, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फिर ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के अंदर मास्टर अब्दुल रहमान मौजूद हैं। मास्टर अब्दुल रहमान को कॉलेज सेट के अंदर पूरे स्टेट के ऊपर फर्स्ट रैंक हासिल हुआ है। यकीनन ये कौम का सपूत निज़ामाबाद के तमाम उर्दू कम्युनिटी, निज़ामाबाद के टीचर्स, निज़ामाबाद के पेरेंट्स का सर इसने ऊंचा किया है। मैं न सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ बल्कि आइटा की जानिब से उनके पेरेंट्स को सैल्यूट करता हूँ। आपकी जो कोशिशें हैं, आपकी जो रहनुमाई है वो रंग लाई है। असल में मुबारकबाद के हकदार उनके पेरेंट्स हैं और इस बात की खुशी बहुत दुगनी हो जाती है जब इस बात को पता चलता है कि इनके दोनों के दोनों पेरेंट्स टीचर्स हैं। मैं दोनों उनके पेरेंट्स को, वालिद मोहतरम को और वालिदा मोहतरमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ ख़ास तौर पर, और मज़ीद दुआ करता हूँ कि अल्लाह बहुत सारी खुशियों से आप दोनों को नवाजें और आपके बच्चों की तरक्की को और अपने बच्चों को फलता फूलता हुआ आप देखें और इसके ज़रिए से इस कौम की, इस कम्युनिटी की, इस मिल्लत की खिदमत का जो सामान हो सकता है वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Myself Abdul Rahman Mustafa Hashmi. My father name is Aitan Pasha, and I am very thankful to Allah Subhanahu wa Taala for making me a ready for all students. I am very thankful to all my teachers and parents. I am very thankful for Aida Nizamabad Association. It has helped me. It has facilitated today me, and it has invited me for facilitation. And I am thankful for Aida's facilitation. And Aida's work is very commendable for children education, and I want to say that Aida is an ideal organization which is also an organization which is involved in the development of the intellectual, moral and professional abilities of the students for a good society. मैं आप तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि आइटा के मकसद के लिए, आइटा के काज के लिए हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह हम ज़रूर इस तरीके के कामों में अंजाम देते रहेंगे। ये जाओ नाम खुदा। जिले निजामाबाद एरगटला मंडल व दीगर मौज़ूआत में हेल्थ सर्वे का कामयाबी के साथ इनेकाद। जिले निजामाबाद एरगटला मंडल व दीगर मौज़ूआत में हेल्थ सर्वे को कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मंडल से मुंसलिक तमाम मौज़ूआत के आंगनवाड़ी कारकुनान व आशा वर्कर्स ने घर घर दौरा करते हुए मुकामी अफराद खानदान से वाबस्ता सेहत के मुतालिक तमाम तरीन तफसीलात हासिल करते हुए मुकामी अवाम को मुख्तलिफ अमराज के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी कारकुनान, चंद्रकला, अनुराधा, आशा वर्कर्स ने शिरकत की। आरमूर में लायंस क्लब की जानिब से मुफ्त डायबिटीज कैंप का इनेकाद।
आरमूर के लायंस क्लब सदर पपुला शिवराज के जेर निगरानी में मुफ्त डायबिटीज कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मशहूर मारूफ माहिर अमराज डॉक्टर वंशी कृष्णा ने दीगर मरीजों का टेस्ट करके इन्हें सलाह व मशवरा दिया और बातज़ा लायंस क्लब सदर शिवराज डॉक्टर वंशी कृष्णा ने खिताब करते हुए कहा कि सेहतमंद रहने के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर पर अमलावरी करने की ताकीद की और बताया कि लायंस क्लब के जेर निगरानी में हर माह में मुफ्त डायबिटीज कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इस सहूलत से आरमूर बालकोंडा हल्के के अवाम खिदमात से इस्तेफादा करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब सेक्रेटरी संतोष हरिनारायण मोहनदास व दीगर ने शिरकत की। లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత డయాబెటిక్ శిబిరాన్ని ప్రారంభించబడింది. ప్రతి నెల రెండవ ఆదివారం ఈ యొక్క శిబిరం ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు ఈ యొక్క శిబిరం ఉంటుంది. కాబట్టి किसी भी मुल्क व कौम का दारोमदार इस मुल्क के तुलबा व नौजवानों पर होता है और जिस तरह के तुलबा व नौजवान मुल्क व कौम को हासिल होंगे, मुल्क व कौम इस जानिब भी गामजान होने का डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने किया इंकशाफ। मुत्तहदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी सदर पोचराम भास्कर रेड्डी ने कहा कि हल्के के नौजवान तालीम के साथ साथ खेल कूद और मुकाबलों में हिस्सा लेकर अपनी पोशीदा सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा करके रियासती सतह ही नहीं बल्कि मुल्की सतह पर हल्के का नाम रोशन करने का इजहार किया और आज डीसीसीबी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक हल्के के नौजवान को PBR सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट को जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के मैदान में 2 यौम क्वार्टर फाइनल मैच का इनेकाद अमल में लाने पर इन मुकाबला जात का मुशाहिदा करने के लिए क्रिकेट के शहदाइयों ने भारी तादाद में शिरकत की। इस माह की 9 तारीख को इंदिरा वैली में कांग्रेस पार्टी के जेर निगरानी दलित व गिरिजन तबकात के इज्जत व नफ्स की बका के लिए मुनक्किद होने वाले जलसे में दलित व गिरिजन और कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन भारी तादाद में शिरकत करके कामयाब बनाने की अपील। आरमूर में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के साबिका व्हिप इरावती अनिल व जिले सदर मानाला मोहन रेड्डी, आरमूर हल्के इंचार्ज AB श्रीनिवास चिन्नैया ने कहा कि रियासत तेलंगाना हुकूमत दलितों गिरिजन की फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए गिरिजन के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने का ऐलान किया, लेकिन 7 साल गुजर जाने के बावजूद कुछ नहीं किया। बेरोजगारों को रोजगार व मुलाजिमत देने का वादा करके धोखा दिया और अब सिर्फ हुजूराबाद इंतखाबात को मद्देनजर रखकर दलित बंधु स्कीम का ऐलान किए जाने का इजहार करते हुए PCC सदर रेवंत रेड्डी के जेर निगरानी में इस माह की 9 अगस्त को दलित व गिरिजन तबकात के इज्जत व नफ्स की बका के लिए मुनक्किद किए जा रहे जलसियाम में दलित व गिरिजन और कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन भारी तादाद में शिरकत करके जलसियाम को कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में आरमूर मंडल सदर जीवन व माकलूर मंडल सदर वेंकटेश्वर राव, नंदीपेट मंडल सदर PCC सेक्रेटरी प्रमोद, DCC सेक्रेटरी मजीद, बाबा, बबलू, कांग्रेस पार्टी के कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। 16% ఎస్సీలకు 8% ఎస్టీలకు కలుపుకుంటే 24%, అంటే 24% ఇంటూ 4 lakhs అనుకుంటే కనీసం 1,00,000 కుటుంబాలు ఇవాళ బాగుపడేటి, 1,00,000 ఉద్యోగాలు దళిత గిరిజన, ముఖ్యంగా దళితుల గురించి గిరిజనుల గురించి రేపు తలపెట్టిన కాంగ్రెస్ పార్టీ తలపెట్టిన దళిత గిరిజన ఆత్మగౌరవ దండోర కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా ఈ జిల్లా ప్రజలకు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఇప్పటివరకు అనిల్ చెప్పినట్టు గత 7 సంవత్సరాల కాలంలో దళితులు గిరిజనులు ఏ విధంగా నష్టపోయారో వివరించారు. 8 दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में तौसी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना स्टेट एजुकेशन कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट TS EdSet 2021 के लिए किसी जुर्माने के बगैर दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में 12 अगस्त तक तौसी कर दी है। क़ब्ल दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख 7 अगस्त मुकर्रर की गई थी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार वेबसाइट पर लॉग इन करते हुए अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। रियासत में 2 साल रेगुलर B.Ed कोर्सेज में दाखिलों के लिए होने वाला इंटरेस्ट टेस्ट TS EdSet का 24 और 25 अगस्त को इनेकाद अमल में आएगा। उम्मीदवारों से दरख्वास्त दाखिल करने के मौके से इस्तीफादे की अपील की गई है। सरकारी हॉस्पिटल्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी का जायजा, मखलूआ जायदादों को फौरी पुर करने और तमाम तिब्बी अशिया दस्तयाब रखने पर चीफ सेक्रेटरी की हिदायत।
चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने रियासत की सरकारी हॉस्पिटल्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी की पेशरफ्त का जायजा लिया और मुख्तलिफ जिमलों की मखलूआ जायदादों पर फौरी तकर्रुरात की महकमे सेहत को हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने आज महकमे सेहत के आला अहदेदारों का इजलास तलब किया। कोरोना की तीसरी लहर की पेशकयासी के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने रियासत के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में बुनियादी सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। मखलूआ जायदादों को पुर करने के अलावा अद्वियात और ऑक्सीजन के अलावा दूसरी सहूलतें फौरी फराहम करने पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने महकमे सेहत के आला अहदेदारों को बताया कि इस मामले में चीफ मिनिस्टर बहुत संजीदा है, कोई समझौता करने वाले नहीं। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की पैदावार के प्लांट्स के क़याम, मौजूदा इमारतों में नई तामीरात की पेशरफ्त पर भी अहदेदारों से वजाहत तलब की गई। चीफ सेक्रेटरी ने रियासत के तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पीडियाट्रिक ऑक्सीजन और ICU बेड्स की तादाद में इजाफे की हिदायत दी। GHMC हुदूद में हॉस्पिटल्स में खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। जो लोग कोरोना का वैक्सीन नहीं लिए हैं, इनकी शिनाख्त करने के लिए खुसूसी मैप अप ड्राइव शुरू करने की हिदायत दी। इजलास में सेहत व खानदानी बहबूद सेक्रेटरी SA अलीम रजवी, पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव, डॉक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी व दीगर मौजूद थे। अब RTC से पार्सल की होम डिलीवरी होगी। तेलंगाना RTC की जानिब से अब 5 अजला बमशमूल हैदराबाद में पार्सलों को घरों तक पहुंचाया जाएगा। क़ब्ल अज़ी ये खिदमत सिर्फ हैदराबाद तक महदूद थी, ताहम अब तेलंगाना स्टेट RTC ने होम डिलीवरी खिदमत को नलगोंडा, निजामाबाद, खम्मम और वरंगल में भी तौसी देने का फैसला किया है। वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने बताया कि ग्राहक बुकिंग के वक्त होम डिलीवरी की सहूलत से इस्तिफादा कर सकते हैं और फिर पार्सल को घर तक पहुँचा दिया जाएगा। ताहम इस सहूलत के लिए इजाफी अखराजात होंगे। TSRTC ने खानगी एजेंसियों के साथ इश्तराक करते हुए 5 अजला में होम डिलीवरी खिदमत के आगाज का फैसला किया है। वजीर मौसूफ ने एक एलामिया जारी करते हुए बताया कि जल्द ही इन खिदमत को 10 मुकामात तक तौसी दी जाएगी और इसे बेंगलुरु में भी मुतारफ करवाने का मंसूबा है। एलामिया में बताया गया कि तेलंगाना RTC की जानिब से हैदराबाद एयरपोर्ट से विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम के लिए डिलीवरी और पिकअप खिदमत शुरू कर दी गई है। बताया गया कि RTC की कार्गो खिदमत को बेहतर अद्दमल मिलने पर तौसी दी गई है। कार्गो खिदमत से RTC को जुमला 52.31 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है और हजारों पार्सल पहुंचा दिए गए हैं। RTC कार्गो खिदमत को अवाम का अच्छा रद्दमल हासिल हो रहा है। फीस में इजाफे के बाद भी जायदाद रजिस्ट्रेशन में कोई कमी नहीं। रियासत तेलंगाना में जायदादों के रजिस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। हालांकि रियासती हुकूमत ने इसकी स्टाम्प फीस और अराजी की कीमत में 400% से ज्यादा इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद भी जायदाद रजिस्ट्रेशन में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इसके बरक्स इसमें इजाफा हो रहा है। रजिस्ट्रेशन में इजाफे के बाद रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प डिपार्टमेंट के सीनियर ओहदेदारों ने इस एहसास का इजहार किया कि लोग गैर मनकुला जायदादों की खरीदी में इनकी बचत की सरमायाकारी करने को तरजीह देते हैं। ओहदेदारों के मुताबिक तमाम सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस SROs में रजिस्ट्रेशन से माह जुलाई के दौरान महकमे रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प्स को हासिल होने वाला रेवेन्यू 700 करोड़ रुपए से तजाविज कर गया। ओहदेदारों ने कहा कि माह जुलाई में कई जायदादों के रजिस्ट्रेशन करते हुए और नजरसानी फीस के मुताबिक स्टाम्प फीस की वसूली से महकमे को तकरीबन 700 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। हालांकि हुकूमत ने स्टाम्प फीस में इजाफा किया और जमीन की गवर्नमेंट वैल्यू पर नजरसानी की, इसके बावजूद इसमें कोई कमी नहीं हुई। खरीदारों ने खुले प्लाट्स, कमर्शियल जायदादों और रिहायशी जायदादों की खरीदी में दिलचस्पी ली और इसमें इनके पैसे की सरमायाकारी की। ओहदेदारों ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि लोग रियासत और शहर में जायदादों की खरीदी में इनकी बचत की सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखते हैं। तेलंगाना में मौसमी अमराज में इजाफा। रियासत तेलंगाना में मौसमी अमराज जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड और असाल दस्त में इजाफा हो रहा है। मौतदी अमराज और पानी से होने वाले अमराज से मुतासरा मरीजों की तादाद में हैदराबाद और निजामाबाद के दवाखानों और दीगर चंद अजला में इजाफा हो रहा है। ओहदेदारों के मुताबिक डेंगू केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। फीवर हॉस्पिटल
हैदराबाद में जुलाई में डेंगू की 100 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड की गए। उस्मानिया दवाखाने में मौसमी अमराज से मुतासिर आउट पेशेंट्स और इन पेशेंट्स की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स के मुताबिक रोजाना 3 से 4 डेंगू केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अजला के लोगों ने कहा कि महकमे सेहत के अहदेदारों की जानिब से जरूरी एहतियाती इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मच्छरों की कसरत हो रही है और अमराज पैदा हो रहे हैं। इन्होंने ये भी शिकायत की कि बल्दी अमले पाबंदी के साथ कचरे की निकासी नहीं कर रहे हैं। हेल्थ अहदेदारों के मुताबिक रियासत में इस साल 608 डेंगू, 508 मलेरिया और चिकनगुनिया के 9 केसेस की इत्तलात है। हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर अमर सिंह नायक ने कहा कि ग्राम पंचायत और बल्दियात से दही इलाकों में साफ सफाई के लिए खुसूसी मुहिम चलाने में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। रियासत भर में घर घर फीवर सर्वे का काम भी शुरू किया गया है। माहिरीन सेहत के मुताबिक मौसमी बारिश के दौरान मौसमी तब्दीली के बायस सेहत पर इसके असरात बहुत आम बात होती है। इन्होंने कहा कि लोगों को भी इस सिलसिले में जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने माहौल को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए आगे आना चाहिए और इन्हें खुले मुकामात पर कचरा डालकर बल्दी अहदेदारों पर इल्जाम तराशी करने से इज्तनाब करना चाहिए। इन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो मौसमी अमराज के दौरान पानी को उबाल कर इस्तेमाल करे और चरंडी खाने से गुरेज करे, जिससे इसहाल दस्त का मर्ज लाक हो सकता है। मानसून के मौसम के पेश नजर महकमे सेहत के अहदेदारों ने DMNHOs को हिदायत दी कि रियासत भर में घर घर फीवर सर्वे मुनाकिद करे। कांग्रेस पार्टी के जेर निगरानी में एरपली मंडल से वाबस्ता मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुकीम 10 साल बच्चों के अफराद खानदान को मच्छरदान की फराहमी अमल में लाई गई। एरपली मंडल में कांग्रेस पार्टी के जेर निगरानी में कैप्टन करुणाकर रेड्डी की मदद से मंडल से मुंसलिक जमलम, धर्मराम, जानकमपेट व दीगर मौज़ूआत में 10 साल बच्चों पर मुनस्सिर अफराद खानदान को मच्छरदान की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर माहिरीन साइंसदान की हिदायत के मुताबिक बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर मच्छरदान की तक़सीम अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ MP भास्कर राज पोचैया, साबिक़ा सरपंच शंकर नायडू, साबिक़ा MPTC बालालिंगम, श्रीनिवास गंगाधर, धर्मराम साबिक़ा सरपंच एस नसैया, धर्मराम नायब सरपंच राकेश राजगुप्ता, जहीर P पोशेट्टी, रवि कुमार व दीगर ने शिरकत की। మనకు ఎంతో ఇబ్బంది పెట్టి ఎందరో చనిపోయారు। అయితే తన కరోనా వచ్చినప్పుడు కూడా కెప్టెన్ కరుణాకర్ రెడ్డి ఏం చేసినంటే ఈ యొక్క పిల్స్ మందు గోళీలను పంపిణీ చేశాడు 1 లక్ష ప్యాకెట్లను। అవి ఎందుకు రకంటే ఈ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరిగి మనకు కరోనా రాకుండా కాపాడడానికని ఆ మందులు పంపిణీ చేశాడు। అలాగే దాని తర్వాత ఈ మాస్కులు, శానిటైజర్ కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది। ఈ మాస్కులు ఎందుకంటే మన ప్రతి ఒక్కరికి तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना कवायद पर अमलावरी जरूरी। 3 अजला में नए मामलों में इजाफा। डायरेक्टर महकमे सेहत तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत के अजला करीमनगर, खम्मम और वरंगल में कोरोना की मामलात में इजाफा होता जा रहा है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि रियासत में टीका अंदाजी पर तवज्जो मरकूज की गई है। साथ ही इन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर अवाम कोरोना के उसूलों पर अमल नहीं करेगी तो रियासत में कोरोना की तीसरी लहर यकीनी है। श्रीनिवास राव ने एक मुकामी खानगी तेलुगु न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि रियासत में बहसियत मजमूई कोरोना के मामलात काबू में है। ताहम करीमनगर जिले, खम्मम, वरंगल अजला के बाज़ मुकामात पर कोरोना के मामलात सामने आए, जिसके पेश नजर इन्होंने करीमनगर जिले का दौरा किया और आने वाले दिनों में दीगर अजला का भी वो दौरा करेंगे। इन्होंने कहा कि कोरोना के कवायद पर अमल न करने से ही दूसरी लहर देखी गई थी। रियासत में कोरोना टीका अंदाजी के मसले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि टीकों का मामला रियासत के हाथ में नहीं बल्कि ये मरकज के हाथ में है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान ऐसे अफराद जिनको दूसरा डोज दिया जाना है की तादाद में इजाफा हुआ है। इन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि करीमनगर के हुजूराबाद में जहां का ज़िमनी इंतखाब होने वाला है में कोरोना के मामला ज्यादा सामने आ रहे हैं। महकमे की जानिब से यहां कोरोना के मुआयनों की तादाद में इजाफा किया गया है। हर मुस्बित मामले की निशानदही करते हुए घर में ही अलग थलग रखा जा रहा है। इस हल्के में मामूल के मुताबिक फीवर सर्वे किया जा रहा है। इस वायरस की रोकथाम हमारे हाथों में है, इसके लिए काफी एहतियात लाजमी है। अखिला भारतीय रायतू कोली संगम की जेर निगरानी में जिले के कायदीन ने किसान मुखालिफ कानून और बरखी को खानगियाने के फैसले के खिलाफ
डिशपल्ली तहसीलदार दफ्तर के सामने पुरजोर एहतजाज मुनाकिद किया। जिले निजामाबाद डिशपल्ली मंडल के मुकाम पर आज अखिल भारतीय रायतू कोली संगम की ज़ेरे निगरानी में जिले के कायदीन ने किसानों मुखालिफ कानून व बरक़ी को खानगियाने के फैसले के खिलाफ तहसीलदार दफ्तर के सामने पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर AIKM में जिले सेक्रेटरी CH साया गौड ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा 3 किसान मुखालिफ कानून व बरक़ी को खानगियाने के फैसले को फौरी तौर पर वापस लेते हुए सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम की जानिब से काश्तकर्दा अराजी के मुतालिक पट्टाजात फ्राहम करने का मुतालबा करते हुए बातज़ात तहसीलदार को याददाश्त हवाले। इस प्रोग्राम में AIKM में जिले के कायदीन राजेंद्र रामदास व दीगर ने शिरकत की। मैं अड़ुता ఉన్నాం అయ్యా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలకు వందల వేల ఎకరాల భూములు ఇస్తూ పుట్ట కూటి కోసం కైకిల్ చేసుకునే మనం ఒక్క ఎకరం ఇస్తే నీ ముల్ల పోయిందా అని అడుగుతా ఉన్నా నేను। అందుకనే మీ అందరి తరఫున इख्तिताम से खबरें से डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी का दौरा, आरमूर अवामी मसाइल की समाअत व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। हुजूमी तशद्दुद का शिकार रजब अली व इनके अफराद खानदान को हुकूमत बेबाक जांच करवाते हुए इंसाफ दे, सदर जमीयतुल उलमा हिंद हाफिज लई खान। बांसवाड़ा इलाके के नौजवान खेलकूद के मैदान में आगे आए, DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी। मुत्तहदा जिले MLC के कविता का दौरा निजामाबाद, कल रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन के MLA कैंप ऑफिस का करेंगे इफ्तिताह। मदुर हल्के की तरक्की के लिए अवामी नुमाइंदा व कायदीन की रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी व MP बीबी पाटिल व MLA हनुमान शिंदे से मुलाकात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।